Welcome back. I know this session is very tough session, not for me, but for you. So as we discuss कर रहे थे तो poster कैसे होना चाहिए? So we have discussed like what are the different contents of project report. Now what are the different contents of poster? Because three things are required. तीन हमें चाहिए होती हैं, एक posters, एक report, एक logbook. So logbook we have already discussed how to make logbook, how to fill it, signatures, and what type of activities we can enter in the logbook. And जो fourth requirement, that is summary. Generally, if you are coming to state level and or you are presenting at national level, summary is required. Summary, and sometimes this is called extended abstract. So this is required for two purposes. First purpose, like जैसे हम सुबह डिस्कस कर रहे थे जैसे हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, स्टेट लेवल पे जब हम पब्लिश करेंगे, abstracts publish करेंगे, so that is the basic content which we publish either at national level or at state level. So second, this summary is scrutinized for allotment of evaluators at least at national level. So on the basis of summary means we try to depute evaluators कि उस subject area के थोड़ा सा उनका touch रहे. और what we have seen in the last few years, summary या abstract में more than 80%, कई बार तो 100% ही introduction या उसका background ही लिखी होती है. तो summary कैसे लिखनी है, उसमें क्या क्या होना चाहिए? Summary में means summary or abstract means you have to cover each and everything. You have to give 2 or 3 lines about introduction. Then you come up with the problems like this project is related to the project is undertaken to do this, to carry this, to survey this, to find this, to. Then 3-4 lines about your work plan and methodology. Means how you like this work done is carried out by way of question for collecting data by way of questionnaire, followed by experimentation on this. And experimentation the basic methods means one paragraph, maybe 5 lines, 6 lines, sometimes 7 lines may be there with respect to methodology. And means methodology and its introduction part should not be more than 50%. And next 50% your results and conclusion. And last line is future, you can say. What I mean to say is with Sara everything should be there. So that by reading your summary, I can get an idea like what is the problem, what are your objectives, how you achieve or how you perform this project, and what you have find basically draw out of this project. So all components should be there. So this is the summary. And methodology is this already. Hypothesis we have already discussed, like how we can construct a hypothesis. I have given an example in the morning, like, and this is the like experimental procedure I will give you in detail, like what type of things we have to keep in mind. Like when you are writing the methodology part, material and methods part, you have to give everything in a scientific manner. When I am talking about scientific manner, means smart approach.
specific, measurable, clear, concise, everything should be there. Like I have given just, this is an example we have already given on our activity book which is published in the national level. Like when you are talking about, I have taken water. Water is taken in a beaker. So this is not a, like 5 ml, how much water you have taken? 5 ml of tap water was taken or is taken, whatever the sentence or form you are using. Similarly, a clock is used to, so here you will use stopwatch with what is this calibration, like 0.1 second or 1 minute or whatever. Or when you are using scale with minimum calibration. When you are talking about flask, like this is taken in flask. So what is the, again, capacity? Because chemistry people know the size of a container, sometimes the reaction may be fast or slow with respect to the size of container, especially when you are dealing with some catalytic or enzymatic reactions. So that's why this is very, very specific. So means when you are talking about materials, like material taken, you can make a list of materials or source of materials you can give. If you have taken some, like again I am taking same example, I am going apple pomace. Apple pomace was collected from this and this industry located at this during the month of, because here month also varies, and how old that pomace, kinna purana si, that also varies, because microbial contamination may be there, some other reactions may be there if that is lying for so many days. So after collection, what do you do with that material? Where you store? Under ordinary conditions, if under ordinary conditions, you have to mention temperature. Like this is, sample is collected and stored in refrigerated conditions or at room temperature in the month of June, July, when the temperature varies from this to this. So this is a, when you teach students that this is important things, then he will learn. When tomorrow when he will observe something, then he will try to correlate these things. वो कहेगा मेरे सर ने बताया था कि टेम्परेचर से ये चेंज हो जाता है, ये वाली चीज ना टेम्परेचर से खराब हुई है घर में सर ने कहा था जो आपने मटेरियल कलेक्ट किया है फ्रिज में नहीं रखा इसलिए स्मेल आने लगी, हमारे इसमें सब्जी में से इसमें स्मेल आ रही है क्योंकि वही स्मेल इसमें से आ रही है. सो आवर पर्पस इज मींस you have to correlate every step, every, you can say, day when you are interacting with student or children about this project, he will learn one or the other thing, either the scientific concept, either the experimentation, either the writing part or so. Then again, conducting a science experiment. So first of all, you have to make a format. Day before, your format should be ready. Like if we are doing experiment, what type of observations I am going to have. कई बार क्या होता है हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बाद में पेपर बना उसमें ये वाला तो देखा ही नहीं, ऑब्जर्व ही नहीं किया, साथ में कर सकते थे, बीच में कौन सा कलर आया था, जब वो मेजर ही नहीं किया. सपोज वी आर टेकिंग वेस्ट, अगेन मैंने कहा वेस्ट में कर लो, ठीक है, वो उसमें 1 ग्राम में डाल लिया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, और उसमें 20 ml वेस्ट में वाटर डाल दिया, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, तो 20 ml डाला, वो 20 ml तो एक्सट्रैक्ट बाहर आएगा, कितना आया, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. लेकिन अगर आपने पहले वो भी निकालना है कितना, या उसमें से सपोज करो यू आर कैलकुलेटिंग मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम, यू आर डूइंग ड्राइंग एक्सपेरिमेंट, कोई वेस्ट को ड्राई कर रहे हो, आप मॉइस्चर कंटेंट निकाल रहे हो, तो पहले वहां से जब लेके आए तो कितने वेट कितना था, देन यू कैन, बाद में आपने ड्राई किया, बाद में देखा जब आप मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज निकाल रहे हो तो उसमें तो इनिशियल वेट भी था, वो तो लिया ही, ऐसी ड्राइंग एक्सपेरिमेंट कर लिया. सो दिस टेबल शुड बी बिफोर हैंड के ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड, दैट शुड बी इन हैंड. दिस शुड नॉट मेड एट दैट टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू जस्ट फिल इट और जस्ट टेक इट on that particular column. So this is very important while you are observing or while you are conducting any experiment. So dummy table should be there.
Then analyze data. I have already told that when experiment is complete, you have to see the measurements, and sometimes like if possible, if the experiment is there, to experiment in triplicate, at least in duplicate, so you can see if the repeatability is there. If I'm doing the same thing in the same way, the results are same or not. If the results vary, how much variation is there? Then you will try to find the answer also why there is a variation. So this is the results I have already told. Log book I have already discussed in very much in detail, like how to make a abstract introduction, motive, procedure, results, conclusion. We have already. This is a general format given in the activity book. I think we have a soft copy of activity book with Madam will circulate with the guidelines and different project summary we have already discussed. This is your which we have mentioned that you should include a last page in the report regarding the improvements carried after the last level. So then the next question is like report कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितने pages होनी चाहिए. So generally it is expected that they should not more than 2500 for junior level, 3500 words for senior level. Again I am saying this is not a qualifying criteria कि अगर 3600 हो गया या 4000 हो गया तब ये report reject हो जाएगी. No. So we have given that because we have estimated that if we use this much of words at that student level of this much age, you can cover the things. But even if you think that I am leaving something cannot be left, you need 2 more pages beyond 35, you can. But this should not be so bulky, again, which can create a doubt. So if this is a messy thesis or a student. So handwritten or typed, no matters, equal weightage is given. Even handwritten reports are much liked by the evaluators because again it gives the authenticity, at least the children has written it with her or him own hand. So if you are typing it, sometimes when students are typing, but what we see in a single page only 4 lines, font 16, 18. So 12 font is a standard font for any report. So you should use this. Normal A4 size page should be there because this is easy to handle, and generally if you are using typical type of file folders or so easily available. But again there is no like restriction you can use, but like sometimes if you are using legal page or too small, so too small cannot be read or not easy to handle. Again large file is again for the handling point of view. So logbook, again language can any be national, local or English language can be there. Presentation total 10 minutes are there, 8 plus 2. We have already discussed if 9 minutes or 10 minutes there, even then it will not disqualify. But try to ask the student that you should make this presentation. Again, here is important. Sometimes what happens? Generally our students are used to or generally oriented toward those declamation and debate or essay reading competition. So they spend much time on introductory part. Like summary, you should not consume your more than 50% on introduction, methodology, plan of work. Because ultimately you should not more than 1 minute on introductory part, 1.5 minute objectives covered. Next 2 minutes your methodology, or you can take 3 minutes. If methodology is important, you can 3 minutes. But then you have to emphasize on your graphs, on your results, on your conclusion, on your follow-up. So again, distribution should be like that. So but we have seen why sometimes student could not
success at the state or national level, he used to read introduction till 6th minute, until or unless your evaluator stops, okay, explain your results. Then sometimes आपने भी देखा होगा बच्चों को एक रट्टा लगा होता है, उनको रोक दो. We generally ask the evaluators कि जो बोलता है उसको बीच में मत रोकना. तो जनरली उसको रोक दो, वहीं पे स्टॉप हो जाता है, उसको बोलते इसको छोड़ दो, आगे शुरू कर लो. Sometimes we cannot do. So if you have planned his oral presentation like this, so this problem will not be there. Summary we have already, generally group leader present the, and 4 charts we have already mentioned, and 5 PowerPoint slides, but this is not mandatory and no additional weightage. Posters we have already discussed, this we have already discussed. So this is all about like what is this NCSE project, what is its structure with respect to administration, with respect to execution by the guide teacher and students, and what are the various steps, what are the various requirements starting from the file to logbook, charts and other things, and what are the other nitty-gritties which is required during the execution. Like we have already told that there are themes. There is one theme for 2 years. Generally 22, 23 there is a theme, understanding ecosystem for health and well-being. Means last year theme, we will continue with the last year theme. Next year this will change. So now try to conclude your project. If you are continuing the previous project, try to. But even then I am saying these themes and sub-themes are so broad. That's why the people who are regular with this program, they are seeing same type of projects since many years. So because they fit in one or the other, like if you see the 2021 Science for Sustainable Living, under this theme there are many ecosystems there, technologies there, other societies there, regional is there, and similarly under the following again same is there. So this is the main theme, understanding ecosystem for health and well-being, and these are the 5 sub-themes. Know your ecosystem, fostering health, nutrition and well-being, social and cultural practices for ecosystem and health, ecosystem-based approach for self-reliance, technological innovation for ecosystem and health. So this technological innovation, this theme is, we have tried to put it from the previous little bit different, because generally in previous themes children could not get the scope to make something like some article or some machine, some innovation type thing. So here is the option, so they can make. So the another thing, technological innovation, but we have thought at that time, because this theme was made during the COVID time, when the COVID was ending. So there were many technologies for health and ecosystem at that time. There are many systems. So we were expecting that sometime these type of projects will be there, but not so much projects. What type of we were expecting was there. And this 5 themes, details, what covers under this, what are the possible projects or the suggested projects are already there in the activity guidebook. The soft, madam will send you a soft copy of that activity guidebook with all themes and major guidelines, along with my PPT. I will give my PPT to all the participants. So you can go through that, the sub-themes. So sub-theme 1 is know your ecosystem. We all know what is ecosystem. I am not going into detail. You know much better, because biology people or other, they are doing daily teaching. We know biotech 2 components are there. We know how these 2 components depend on each other, what is their relationship, what are their functions, how one is dependent on another, how one is affecting others, how one has impact on others. So you can, how one is associated with others, how our biodiversity is associated with ecosystem, and what is the human dependency on ecosystem, impact of human activities on ecosystems. So you can work, you can in HP, in this ecosystem
and another, the next three sub-themes, there is a lot of scope because lot of biodiversity is there, vegetation is there, different type of land is here, and developments are there. Either this is the industrial developments, constructed development, road developments, you can see the impact of those things. So focal area means you can work on freshwater lakes, freshwater streams, tanks, you can work on forest, you can work on grassland, agroforestry, even farmland is there. Means you see, with any focal area you will find in HP. So there is a lot of scope, like you can be within that particular grassland, that you can say the number of varieties of plants in particular meter by meter area in particular grassland, how much insects are there, then variety of insects, so weeds, what type of weeds are there, and then you can even connect with the previous knowledge. Means you can ask your elders, like, is there any change in this particular grassland since last 10 years, 15 years or 20 years? So you can relate with the, well, like, what are the different factors which led to this change? So you can conclude like this. So similarly, in ecosystem there are different type of impact assessment. This is what is already there. Well, what is there in grassland? What you can, your project may be only on the impact of, like this. Now there is a one way from Shimla to Chandigarh. So before that, what is there? So with respect to the structure of mountains, hills, type of trees, and even you can relate with the living style of the people who are residing interior to the main road, or who are residing in the vicinity of like 200 meters or 500. There is a change in lifestyle. So again, this is the effect of the construction or the road or those. So there are a lot of scope on this thing. And second thing, that is fostering health, nutrition and well-being. So this is basically related with the health. Health may be animal health or human health. So you can relate again. You can see the impact. Like in the school, you can do this project. You can collect data about the eating habits of different children. You can compare the weight of those children. You can get the data about typical type of diseases in that particular. So you can try to use the people who eat Maggi twice a week has this problem. The people who are used to take rice instead of this are slim or obese, whatever they are. So this thing may be there. And even with respect to like variation of temperature, variation of climate change, variation of weather. So like you can see, you can collect the data from the nearby dispensary. Like in this season, how many patients are there, and what is the division like for what disease they are. So when there is a change in season, there is maybe allergy, there may be cold. But for this particular season, then you can correlate the, like you can give the data like this is the month where you are prone to this. So this is your conclusion and this is your finding. And this is basically your this is your output for the people also. Like these 2 months in our area, suppose you have a allergy patient for this particular 2 months. And doctor told this, and your elders told that this allergy is due to the pollens of this particular plant. And this particular plant gives flower during this season. So you can correlate the things.
So in this way you can give the data. So and you can give the precaution also to the people. सर आप बहुत अच्छे से करा रहे हैं। मैं चाहता हूँ जैसे आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेके जैसे नेगलेक्ट बच्चा कितनी बार खाता दिन में या पॉलीमोनियस बीमारी हो रही है, कोई एक करके हम उसका प्लान मेथोडोलॉजी एक्सपेरिमेंट इस तरह से चले तो शायद हम कुछ पॉइंट लिख लें और आगे बताने में मदद करेगा। Again sir, मैं उसमें लास्ट में ट्राई दिस अगेन आई एम सेइंग दिस इज ए scientific project and scientific report. So I don't give you the clear point by point. Then you will stick to that. This is the beauty of this project. Like how you make your project different from the others. Like I may say that okay, you must go to the hospital, collect the data, then verify this data. Like if he is saying that approximately 10 patients are coming to me, doctor says for this particular. Then you can secondly you can verify the data. You can visit some houses like in that, then you can say every alternative house has this type of patient. So now you have to frame the questionnaire from the to get information either from the hospital or from the patient. Then you have to design the questionnaire. Like what type of conclusions or hypothesis is what type of hypothesis you are there and what type of conclusions you are expecting. So you are again while framing the questionnaire you have to keep in mind आप किससे ले रहे हो. अगर आप डॉक्टर से ले रहे हो तो आप 20-25 क्वेश्चंस मत बनाना, उसके पास टाइम नहीं होगा इतने क्वेश्चंस का आंसर करने का. अगर आप ठीक है घर में जा रहे हो एल्डर्स के जा रहे हो तो 20 बना लो, बैठ जाओगे बातें भी करोगे साथ में क्वेश्चन भर लोगे. सो यू आर फ्रॉम अगर वहां पे बिजी पर्सन है उसके पास तो कंक्रीट होना चाहिए. अगर आप देखो इसमें अगर यही मैं बता रहा हूं अगर एलर्जी का कर ले फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइड कि आई एम वर्किंग ऑन मैंने आई हैव जस्ट ऑब्जर्व इन दिनों में ना somebody told कि पेशेंट्स बहुत आते हैं. Then you have to verify the data from the hospital with the questionnaire. और questionnaire में आपको क्या चाहिए? Number of patients per day. आप पूरा हफ्ता जाओगे पर वीक का अगर आपके पास आ गया and end of the month जाओगे एक मंथ का डेटा आ गया. और जब पर डे आप गए आपको अप्रोक्सीमेटली पता चल जाएगा कौन से पेशेंट्स आ रहे हैं. वो अब आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ पेशेंट्स, टाइप ऑफ डिजीज, फिर आप अच्छा टाइप ऑफ डिजीज फिर आपने ये भी रहेगा देखना भी ये ज्यादा वो किसको रही है, बड़ों को रही है बच्चों को रही है. देन यू विल पुट द एज. फिर आप देखोगे ये भी देखना था मेल को है फीमेल को है तो आप उसमें क्वेश्चन डालोगे मेल. फिर आप देखोगे भी सबका ठीक है और ये देखना था कि पतले वाले हो रही है या सिर्फ जो वीजा हो रही है. तो क्योंकि डॉक्टर जनरली वेट सबका लेता है. So in this way you will when you will work that automatically questions keep coming your question bit. Sometimes question is too long, then you have to select what is important. So delete those on very what is your name, like okay what is your father's name, where you belong. So if those questionnaire can be skipped, like you just like if you are in an urban area बाहर नाम लिखा हुआ है तो बाहर उसका नाम लिख लो, लोकेलिटी का नाम लिख लो. सो दोज क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आंसर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल कन्वर्सेशन. जब कन्वर्सेशन है उसी टाइम नोट कर लो, उसको क्वेश्चन का पार्ट मत बनाओ क्योंकि अगर आप उससे एक क्वेश्चन भरवाओगे जब बोर हो जाएगा. सो यू हैव टू कीप इट विद व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू रिक्वायर. सो क्वेश्चन के बाद देन यू हैव टू कोरिलेट विद फिर आपने ट्रेडिशनली आप उसके लिए क्या करते हैं. So then you can compare what are the methodologies, strategies, approaches to counter those lapses. So doctor से approach से data लोगे generally what is your approach to treat this? वो कहेगा कि एलर्जी की हमको दे सकते हैं और साथ में ये भी देते हैं. Then you can compare the traditional remedy for that from ऐसा data लो. So then at the end you can conclude in my area this is the problem. So I have that data during this month to this month approximately
this number of persons visit the hospital, and with the pie chart, this is the male, female, or from the bar, this is the male, female, this is the age range, or this is that. Then finally comparable table. This is the traditional remedy, this is the modern or the allopathic remedy, this is the Ayurvedic remedy. So this is you are giving a beautiful. Otherwise, combined information शायद आपको नहीं मिलेगी. So again, this is a project. So you have to see कि उसमें क्या डाला. कोई एक्सपेरिमेंट है. वो कहेंगे इसमें ये होता है. कोई पर्टिकुलर उसको भी इसमें जब मैं लगाता हूँ तो उसमें ना एक जलन होती है. तो मैं जलन होती है तो उसमें शायद ऐसा होगा. तो ऐसा होगा तो उसकी pH 7 से कम ही होगी. तो मैं उनको ठीक है थोड़े से पत्ते तोड़ के लाओ उसका एक्सट्रैक्ट बनाएंगे. एक्सट्रैक्ट बना के हम इसका pH चेक करेंगे. एक एक्सपेरिमेंट हो गया. बच्चों को पता चल गया pH कैसे ऐसे चेक पत्ते के ऊपर रख के pH तो मेन चेंज चेक होगी. तो एक्सट्रैक्ट लग रहा है तो भी चेक होगी. So in this way like food पे है. फूड पे एक्सपेरिमेंट भी दूध फट जाता है. वो दूध फट जाता है. अब हमें पता है दूध फटता है. प्रोटीन कोगुलेट होती है. कब होती है? जब उसकी में एसिड कंटेंट या पीएच इस लेवल से कम होता है. पनीर निकालते हैं तो कहते हैं पनीर चाहे नींबू डाल लो, फटकरी डाल लो, सिरका डाल लो, लस्सी डाल के पनीर निकल जाएगा, दही डाल के निकल जाएगा. क्यों निकलेगा? क्योंकि हमें पता है भी पनीर क्यों निकलता है जब दूध फटता है. दूध क्यों फटता है? उसमें प्रोटीन कोगुलेट होती है. प्रोटीन कोगुलेट होती है जब उसकी pH उसमें एसिड कंटेंट है उस लेवल से क्रॉस है. So in this way you can relate this type of experiments during your now here is the role of guidance. Like where to कई सर्वे प्रोजेक्ट्स टीचर्स कहते हैं सर सर्वे एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे. In this way you can introduce small experiments in that part. So know your this is a list of activities or experiments we have already given the activity which is from where you get an idea like how you go for the projects. Then second we have already told health like human health, and you can even if midday meal is there you can see the impact of midday meal. Suppose अगर स्कूल में नॉन गोइंग जा रहे हैं midday meal right जा रहे हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को करते हैं which cannot afford the regular jobs. So you can compare like जो बच्चे उसी कम्युनिटी में या उसी लोकेलिटी के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनकी हेल्थ क्या है, दूसरे क्या है, कितने बार होगा जाते नहीं जाते. And even you can get an idea कि एक बच्चे की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये कितना वेट है, ये वो हमें स्टैंडर्ड डाटा मिल जाएगा उसकी पर डे की कैलोरी रिक्वायरमेंट. और जो मिड डे मील में वो क्या खाता है, भोज पाती खाता है, कितना साइज है, कितने ग्राम की बनती है, उसमें कितनी कैलोरीज है, देन वो क्या उसकी वो हो रही है या नहीं. अगर इस ये वाली रिक्वायरमेंट है अगर वो घर में ये वाला खाता है स्कूल में मिड डे मील खाता है देन यू कैन कंपेयर विद स्टैंडर्ड्स. तो इसमें ये वाली डेफिशिएंसी हो सकती है क्योंकि ये वाली प्रोटीन नहीं ले रहा है या कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा है या उसमें मिनरल्स या और व्हाट आर टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट. दिस इज ऑलरेडी देयर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे कि वो आपको रिक्वायरमेंट है. देन यू कैन कंपेयर व्हाट वी आर गिविंग टू आवर चिल्ड्रन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट. ओवर क्या ले रहे हैं कम क्या. तो आप एक क्लास के बच्चे स्कूल के बच्चे पर्टिकुलर एज के बच्चों के लिए ये वाला प्रोजेक्ट कर सकते हैं. उनसे एक क्वेश्चन करो आप सुबह क्या खाते हो, उसके बाद क्या खाते हो, शाम को क्या खाते हो, देन उनका निकालो एवरेज कैलोरी देन उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी क्या क्वेश्चन आ जाएंगे, उससे आपको पता चलेगा उसकी कंजम्पशन कितनी है कैलोरी. देन यू कैन प्रेडिक्ट कि ये बच्चा 4 साल होने जा रहा है नहीं जाता. सो दीस टाइप ऑफ projects that you have to think. So a innovative idea उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या होगा भी बच्चे की हाइट मेजर करना उसका अपना एक स्टैंडर्ड मेथड है. कैसे आप मेजर करोगे उसको
वेट जो कैसे वेट कैसे मेजर करनी है, स्पोर्ट्स साइंस का या हेल्थ का, मेडिकल, वो अपना एक मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है कि कैसे आप मेजर करना है। सो दिस टाइप ऑफ small observations in the form of experiments you can so health, food, sources of food in your life, changing जैसे lifestyle में changing food habits पे experiment, people practices, myths पे, जैसे बहुत सारी टाइप ये खाओगे ये ठीक हो जाए, ऐसे myths पे भी हो सकता है, ये वाली चीज खाने से ऐसा होता है, तो you can get that, कितने लोग खाते हैं, वाकई हुआ ऐसा नहीं हुआ, अगर हुआ है तो you have to find the reason। आप डॉक्टर से बात करोगे या फिर लिटरेचर सर्च करोगे कि अगर इसी से ये हो रहा है, दिस मींस दिस इज द रीजन। सो अगेन दिस इज ए वाटर पे भी इस वाटर डिसइंफेक्शन पे जैसे वाटर आ रहा है, देन अगर जिस स्कूल में जो माइक्रोबायोलॉजी फैसिलिटी है, भी प्लेटिंग वगैरह थोड़ा बहुत कर सकते हैं या थोड़ा बहुत है इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो नॉर्मल वाटर लेवल में कितना काउंट आ रहा है, एसपीसी का प्लेट काउंट कितना आ रहा है। एक आप अपने स्कूल का जो फिल्टर वाटर लगा हुआ है उसका लेवल, एक नॉर्मल हाउस होल्ड का लेवल पंप से या कोई और लेवल कर रहा है, और डिफरेंट कंपनीज का लेवल सिस्टम तो भी उसमें कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन भी बॉयल करने से आपने अगर माइक्रोबायोलॉजी आपने नाउ स्टडीज ऑन डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, आपने बॉयल किया, जैसे बॉइलिंग नहीं हुआ, आपने बॉयल किया, उसके बाद प्लेट किया, कितने मिनट 10 मिनट, फिर आ गया 20 मिनट किया, फिर आ गया 25 मतलब 25 मिनट इज ऑप्टिमम टाइम फॉर डिसइंफेक्शन। अगर 10 मिनट बॉयल किया नहीं होगा, 5 मिनट में नहीं होगा, बॉयल बोला था ये हो गया, अब बॉयल कितनी देर। सो अगेन वाटर डिसइंफेक्शन आपको बहुत स्ट्रीम्स आ रही है, चैनल्स आ रहे हैं, यू कैन कलेक्ट फ्रॉम सैंपल्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स। तो आप देख रहे हो वहां पॉइंट से 2 बैक्टीरिया आए थे, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हमने देखा एक बीच में क्वालिटी आ गई, उसके बाद उसमें बैक्टीरिया बढ़ के इतनी बड़ी, उसके बाद और अगर नहीं चेक यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ टेस्ट, वेरी नॉमिनल टेस्ट आर देयर फ्रॉम सम लैब आल्सो, उसको एसपीसी कहते हैं, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट कितना आ रहा है। So again then you can say that this locality is reversible। फिर आप locality पे जाओगे, उस पे डिस्चार्ज कहाँ से हो रहा है, क्या डिस्चार्ज हो रहा है, what is the source of contamination। So number of correlation basically पहले जंक फूड एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ लोकल फूड। एक बार ये क्लास है खाने में लगता है जनरली हिल स्टेशन में या कोई ट्रेडिशनल कोई प्लांट उसका खासियत होता है, ठीक होता है, इस काम के लिए ना होता है, बहुत स्पेसिफिक है। then you have to find a scientific, अगर पहले प्रोटीन है तो टेस्ट करवा लो एक बार, आजकल कर देते हैं प्रोटीन कितनी है बात है, नाइट्रोजन लेवल टेस्ट करा लो, तो हां बाकी इसमें प्रोटीन बहुत, या कोई कह रहा है ये बहुत विटामिन सी बहुत है, तो विटामिन सी का टेस्ट करवा लो। so then you can verify yes this is source of this। so number of projects can be done on this। then third thing social cultural practices for ecosystem है, again ये हर बार ऐसा social cultural practices, how these social practices in local context over the period of time are helpful or harmful for protection of our ecosystem, our health। so these type of projects can be their traditional knowledge base, society culture, their practices, agricultural practices, social practices, again जैसे cloud loss and result flooding its impact on ecosystem। हम देखा वहाँ एक पल बटा था, उसके बाद एक साल बाद 1.5 साल तक वहाँ पे जो हाउसेस थे वो कब तक इकोसिस्टम जो वहाँ पे सोशल इम्पैक्ट हुआ है, कितने लोग वहाँ पे दोबारा आए नहीं आए या कोई बाहर से आया, तो वहाँ पे लोकेलिटी पे कोई असर हुआ है, वहाँ पे जो फार्म प्रैक्टिसेस पे कोई असर हुआ है। So social impact practices पे then ecosystem based approach for natural resources में इसको हम बोलते हैं, how we are using natural resources for either for animal
और for plant based, for sericulture based, aquaculture based, apiculture पे काम हो सकता है यहाँ। So ecosystem based, then ये प्रोजेक्ट then technology innovation, जैसे सर ने अपने पेक्टेन है वो this can be done। पेक्टेन वाला इसमें आ सकता है, you are developing a method for you are developing some technology for persons with disability, कोई सोलर पे है, कोई आप ड्रायर बना रहे हो, और tools different type of again method for disinfection, फिर वही वाटर वाला यहाँ पे हो सकता है, बायोमास बना रहे हो, या जैसे राइस स्ट्रॉ है उनका कोई यूज बना रहे हो, उससे कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हो। जैसे एक प्रोजेक्ट मैंने इस बार देखा था वहाँ पर नेशनल पे, तो बच्चे ने किया हुआ था, उसने सभी क्लास का जो कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पे छोटे-छोटे बॉक्सेस लगाए हैं, पेंसिल शेविंग्स है ना उसमें, उस क्लासरूम को साफ रखने के लिए पेंसिल शेविंग्स को एक डिब्बे में डाल, तो उस बच्चे ने प्रोजेक्ट किया भी 10 क्लासरूम में से पर डे कितनी वो शेविंग हो रही है पर मंथ नहीं हुई है। फिर उसने क्या करके हाउ टू यूज इट, तो उसने उसका अलग-अलग नोट्स बना लिए, ऐसे ही डेकोरेटिव मटेरियल्स, उसने प्रोटोकॉल वगैरह डाल के उसने कंपोनेंट बनाया, तो उसने बड़े अच्छे मतलब यूज ऑफ दैट वेस्ट अदरवाइज मतलब वो शेविंग का नीचे कूड़े में फेंक जाएगा। सो मतलब दिस इज द इनोवेशन, एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के, हाँ ठीक है बाकी वेस्ट को सब करते हैं, बेटे क्या राइस को यूज कर लिया, ये कर लिया, इसको कैसे करें। स्कूल में कौन सा वेस्ट ज्यादा है, पेपर वेस्ट ज्यादा है, पेपर से और क्या कर सकते हैं, कैन वी रिसाइकल दैट पेपर। स्कूल में हमें क्लासरूम में बच्चे भाग रहे हैं फेंक रहे हैं, क्या हम उसको डस्टबिन में जा रहे हैं, नो डाउट दैट इज बायोडिग्रेडेबल, कैन वी इंटरनेट रिसाइकल में कहीं पे, और सो कितना वेस्ट हो रहा है स्कूल में, पर मंथ कितना हो रहा है, साल में कैलकुलेट करो कितने किलो पेपर एक स्कूल में जस्ट बच्चे फाड़ के रह रहे हैं, और एक केजी 1 kg of that type of paper requires how much trees and how much cost is there for making 1 kg of paper, then you can calculate how much money is wasted. So in this way you can relate, it depends upon you, your scope of work, your facility time, like you can relate the things. और टेक्नोलॉजी इनोवेशन आइदर फॉर द टेक्नोलॉजी फॉर इकोसिस्टम कंजर्वेशन और फॉर मैनेजमेंट, आइदर दिस इज फॉर हेल्थ, दिस इज फॉर लाइफस्टाइल, दिस इज फॉर मेकिंग आवर लाइफ इजी, और फॉर डिजीज डायग्नोसिस। सो इसमें जैसे वी वर एक्सपेक्टिंग कि डिजीज डायग्नोसिस में आजकल जैसे बच्चे मोबाइल बहुत पढ़ रहे हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, भी आप जैसे आप अपने जहां पे कुछ हुआ है आप उसको डालो तो वो सॉफ्टवेयर आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि ये क्या है। So with this type of बच्चे आजकल एक कॉन्वेंट स्कूल के जाके वो सॉफ्टवेयर कॉम्पिटिशन के भी शायद इस लेवल पर भी आएंगे, लेकिन इसमें कोई ज्यादा नहीं है। So but this can be again done because अगर आप देखो आने वाले 5-10 साल में इस डायग्नोसिस ट्रीटमेंट डिजीज डायग्नोसिस पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना ज्यादा काम हो रहा है, भी जैसे कैंसर है पहले डॉक्टर पता नहीं चलता, तो उसकी लोगों ने ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए, 50 लाख डाल दिए आर्टिफिशियल बना के, आपने अपना सेक्शन जो करवाया था उसकी वैलिडिटी बता देगा कि इससे मैच करती है नहीं, कितने परसेंट चांसेस हैं भी ये कैंसर है या नहीं। सो देयर आर मेनी अदर सिस्टमैटिक जिस पे कोई सिम्पटम आता है उसके बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो वो डिजीज डायग्नोसिस करती है, आपका एक्सरे का डिफरेंट टाइप ऑफ अदर जैसे अल्ट्रासाउंड का या एमआरआई का, क्योंकि ह्यूमन आई कैन नॉट डिफरेंशिएट, डॉक्टर चाहे कुछ करता है ऐसे देखता है बट ही कैन नॉट डिफरेंशिएट लाइक minutely like the computer can. So ऐसे diagnoses are coming in, but I'm not expecting from just for the knowledge sake, but this can be done like nowadays there is a software एक बच्चे किसी ने बनाया भी आप कैमरा है, मुझे हमें लगा कि शायद उस लेवल पे उसने प्लांट डिजीज प्लांट के पत्ते की फोटो उसमें डालते की फोटो डाली पैचेस भी आया हुआ था, तो देन उसने सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर दिया दिस इज डेफिशिएंसी, दिस इज ड्यू टू द पेस्ट, दिस इज ड्यू टू दिस।
तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं एग्रीकल्चर पे। कई बार बच्चे छोटा मोटा वो बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर फाइन, और काफी सारे एक और इसका देखने को आई। कुछ स्टेट्स में मैं 4-5 स्टेट्स में गया स्टेट लेवल इस बार, एक इंस्पायर में मेरा ख्याल पैसे देते हैं वो मॉडल बनाने, तो उसमें शायद टीम था वो डिसेबल्ड के लिए क्या कहते हैं, बहुत स्टेट में चाहे वो पंजाब हरियाणा में कैब ड्राइविंग के लिए भी जो ब्लाइंड के लिए कैब है जो वही एक स्टिक है ये लिए वो लाल मारेगा जब गड्ढा आएगा आगे जाएगा, नो डाउट ऑटोमेशन सरकार, बट मैंने देखा सब का सेम है। तो फिर किसी ने बताया भी इंस्पायर में कुछ ऐसा आया था, तो सभी स्टेट्स में वो इंस्पायर वाले जो प्रोजेक्ट्स थे वो आके थोड़ा देखा बना दे, वो हो सकता है, वो उसको यूज कर सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट फॉर्म में जैसे इंस्पायर में क्या है मॉडल बना दिया, कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में कर दिया भी, अगर आगे कोई हिंड्रेंस आएगी कैमरा देगा बीप बजेगी तो ब्लाइंड पर्सन को पता चल जाएगा आगे अगर लेवल की घटना है तो उसका कुछ ऐसा बना दिया, अगर कोई हिंड्रेंस आ रही है तो इसको ऑप्टिमाइज कर लो, कैमरा हमारा इतनी दूर डिटेक्ट करता है नहीं करता, अगर ये इस रेंज का कैमरा लगाए तो इसकी रेंज यहाँ पे इसको मतलब दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी डन इन दैट साइज, उसकी रेंज, कवरेज डिफरेंट, सो these I'm not going too much in detail, technological innovations again, and you can even compare the today's technology with the previous technology, traditional technology. So district coordinators के which we are हमने मॉर्निंग में डिस्कस कर लिया, क्वालिटी पर डिस्ट्रिक्ट में से आने चाहिए, और then the last part I will take only 15 minutes, then we will discuss screening. We all know screening criteria, and here we all know that this should be clear that we are not using word judge, we are using word evaluate, because judge है और judgment देता है, this is right, this person is right, this is wrong, ये काम किया जी, यहाँ पे हम evaluate करते हैं, ये ऐसा ये ठीक है, थोड़ा ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, इसमें ये वाली इम्प्रूवमेंट हो सकती है, इसमें ये लैकिंग है, इसमें you are just evaluating the person, so this is not a judgment, and यहाँ पे आप जैसे मुझे पता चला था कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से अपने एक ऐसा नॉमिनी बनाए हैं which can act as an evaluator at district level or state level, so यहाँ पे हमारा पर्पस इस प्रोग्राम का पीएचडी का वाइवा लेना नहीं है, एमएससी का वाइवा लेना नहीं है, बच्चों को और टीचर्स को मोटिवेट करना, उनका साइंस में इंटरेस्ट जो उसने किया है उस पे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, उसको खींचना नहीं है, अगर सिंपल भाषा में उसको ये नहीं महसूस करवाना भी तुझे कुछ नहीं आता, तू करके क्या आया, आप अपनी इन्फॉर्मेशन निकलवा लो, लेकिन उसको पता लगा मुझे जज कर रहे हैं या मुझे इवैल्यूएट कर रहे हैं, लेकिन आपको पता चला कि मेरे साथ बातें हैं। पंजाब में एक बार एक को बुला लिया जजेस को, ऐसे बहुत साल पहले आपको हम ट्रेनिंग में करते हैं, क्योंकि डायरेक्टर को बुलाओ बहुत अच्छे साइंस कम्युनिकेटर, ही इज वेरी नोन साइंस कम्युनिकेटर, तो उस बच्चा आया ये किसी ने किया अपने टीचर किसने कराया, टीचर को बुलाओ, टीचर आपको ये नहीं पता बच्चों के सामने टीचर बोलना, सो उसके बाद कुछ टीचर्स हमारे पास आए सर हम बार लास्ट टाइम आ रहे हैं, so this is not a mandatory program, हम भेजते हैं, तो यहाँ पे अगर दो टीचर करके आए 150 जो टीचर थे उस डिस्ट्रिक्ट में से उसमें से जो 10 टीचर आए हैं एक्स्ट्रा वर्क किया है, एक्स्ट्रा पे लिया, चाहे क्वालिटी है चाहे फिर भी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट लेवल पे है वो अपना टाइम अलग से निकाल के आए हैं, बच्चों पे टाइम निकाला हो, सो यू शुड एनकरेज देम टू, उनको अप्रिशिएट करो, उनको मैं बोला सेशन हटा दो, बहुत अच्छा किया, अगर ये थोड़ा
सा और भी कर लेते हैं, तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया नेक्स्ट टाइम ये वाला ट्राई करें। इसमें ये उनको लगे मैं कुछ करके आया, लेकिन मोटिवेट और उसका मतलब ये भी नहीं उसको बीच में कुछ है उसको पूरा चढ़ा दो, फिर उसने आगे नहीं देखा। साथ साथ में कह रहा हूं बताना है उसको ठीक बहुत बढ़िया बात किया है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा है ना देखा नहीं आगे तक देखना ऐसा भी देखो, क्योंकि एक बार हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, हमने ऐसी ओरिएंटेशन बच्चों को मोटिवेट करना है, इंटरेस्ट करना, ताकि जो बच्चा जाएगा आगे साल दो को और कहे कि आप भी प्रोजेक्ट कर। तो जब रिजल्ट निकला तो टीचर्स आ गए कहते हमारा प्रोजेक्ट आया नहीं, वहां पे जो वैल्यूएटर्स ने तो इतना अच्छा बोला था भी आपका तो वंडरफुल है, आपका तो बहुत बढ़िया। सो दिस यू हैव टू गेन के बैलेंस, बट एक बात होनी चाहिए बच्चा वहां से डीमोटिवेट नहीं, टीचर है या बच्चा है डीमोटिवेट होना चाहिए, ये उसको मोटिवेशन दे। सो व्हाट टू इवैल्यूएट हमने वैसे शुरू से देख रहे हैं सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसमें साइंटिफिक कंटेंट कितना है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी कितनी है, ऑरेटरी स्किल्स उसका कोई मीनिंग नहीं, टीम वर्क है या नहीं है। सो दीस आर द कोर एरियाज, बाकी मैं डिटेल में आगे क्या देखते हैं। दिस इज द कोर एरिया वेयर दिस इज द मैंडेटरी थिंग which we generally subject matter means subject matter क्या है, how that this subject matter is related to his geographical area, how this subject matter is related to theme or sub theme. So evaluation जैसे मैंने पहले बोला है, कई बार जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा वाइवा देने को लेने का बहुत बार, कई एग्जामिनर क्या होते हैं जो वाइवा लेने आते हैं, वो जब तक आप नहीं कहते नहीं आता और मतलब और कई क्वेश्चन पूछेंगे वो ठीक देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर समटाइम्स फॉर सिंगल क्वेश्चन, लेकिन वो कहते हैं वो बता जो मुझे आता है। सो दैट शुड नॉट बी देयर। और सेकंडली जो मैं सिंपल भाषा में हम बोलते हैं भी आपकी जो मीटर्स में नॉलेज है ना, उसको बच्चे की जो सेंटीमीटर वाली नॉलेज है उसके साथ अपना जो स्केल है मीटर वाला उसको छोड़ के अपना स्केल छोटा सी सेंटीमीटर में करो, उस छोटे स्केल के साथ बच्चे के लेवल पे देखो। बच्चा 10th क्लास में या 8th में है, ये उसके लेवल का क्वेश्चन है या नहीं। आप मत सोचो कि मैं तो मास्टर फिजिक्स हूं, अगर मुझे ये आता है या सोचो मुझे कब लगा थोड़ा सा टू बी वेरी मैं सोचता हूं भी मैं अगर बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो मुझे बताइए अगर इसको ये पता ठीक है। थोड़ा अगर आप अपना स्केल है बच्चे वाला स्केल है, आप अपनी नॉलेज के साथ मेजर करना है उस स्टूडेंट के अगर क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें जो वैल्यूएटर्स हैं स्पेशली फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल, आप स्कूल में से क्योंकि स्कूल वाले बच्चों टीचर्स को पता है क्या लेवल क्या है, कितना कंटेंट बच्चे करते हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द 8th क्लास पर्टिकुलर। तो अगर जनरली क्या होता है ट्रेंड भी अगर हो रही है तो आप यूनिवर्सिटी से बुला लो, कॉलेज से बुला लो, दैट शुड एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं। और अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बुला रहे हो दैट दोस पर्सन शुड बी प्रॉपर्ली ओरिएंटेड। और ये वाली लाइन आपको बोलनी है कि अपने जो स्केल है ना मीटर वाला उसको छोड़ के सब छोटा स्केल जब मेजर कर रहे हैं बच्चे को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसको जो आता है उसको भी थोड़ा सा मैंने 10 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने 5 आंसर दे दिए, वो भी पूछने की कोशिश करो। नॉट ओनली यू शुड नॉट फोकस व्हाट दे डोंट नो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवेल्युएटर बनने जा रहे हैं या एवेल्युएटर्स को आगे ट्रेनिंग देनी है। और कई बार बच्चा भी डर जाता है, क्रिटिसिज्म जब होता है ना भी नहीं सर हमने ऐसे ही होता है, बच्चे के साथ बच्चे वहां पे ठीक है देन चेंज मतलब उसको पता ना चले ठीक है, उसको ये भी ना लगे उसको ये भी ना लगे सर ने वैसे ही इन ए टैक्टिक वे जस्ट चेंज द बच्चे के साथ बहसबाजी, कई बार बच्चे बहसबाजी करते हैं स्पेशली फॉर कॉमर्स स्कूल्स, वो बहुत करते हैं यार। तो जैसे मैंने पहले बताया कंपेयर वो सीनियर लेवल के साथ साइंटिस्ट के साथ वो मत करो। और कंस्ट्रक्टिव इनपुट्स, पॉजिटिव फीडबैक
और उसकी ये तो एप्रिशिएट करनी है एफर्ट्स, ये बहुत अच्छा काम है। कितने दिन लगे बेटा, कैसे निकाला टाइम काम, अरे वाह। उस टाइम खेलना खेलना इसकी वजह से अरे वेरी गुड, आप तो कुछ बनोगे। अगर इसी लेवल पे आप इतना कंट्रोल आ गया काम के लिए, आप ये वाली चल रहे हो। सो दिस इज देखो मेरा रिकॉग्नाइज हो गया, मैंने 4 दिन खेला तो मुझे शाबाशी इसलिए मिली कि 4 दिन आप खेलने नहीं गया। सो आप नहीं सोच सकते, अगर आप साइकोलॉजी के साथ बात करें, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। आजकल तो व्हाट्सएप पे बड़ा कुछ आ रहा है जो साइकोलॉजी और मुझे बच्चों को ये कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए, इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, इसका नेगेटिव। जो टीचर है ना, टीचर और एवलुएटर है, जितना उसका इम्पैक्ट है बच्चे के ऊपर। आप तो वैसे में वो पेडागोजी ये वो सारा कुछ पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं। जितना एक टीचर का इम्पैक्ट है एक शब्द का, अगर वो क्लास में रोज एक काम इवन डंडा जिसके साथ उसने मारना तो वैसे मारना, अगर वो डंडा भी अच्छे से मारता है तो उसका भी इम्पैक्ट है। अगर वो कहता है कि सारी अंदर को उसको एक्सप्लोर एक ही बच्चे कहता है तो उसका भी दूसरे बच्चों पे इम्पैक्ट। छोटी-छोटी बात तो मैं अपनी बेटी को स्कूल में अगर पढ़ाता हूं, कई बार कोई कॉन्सेप्ट है कुछ हमने हमारे बात का बड़ा नहीं पढ़ा, इस लेवल का ये इसमें ये भी है, नहीं ये नहीं, मेरे टीचर ऐसे मैं कई बार जो आपके टीचर है ना वो हमारे पास पढ़ के जाते हैं तो हम उनको पढ़ाते हैं मेरे टीचर बात, लेकिन वो मेरी बात वो अपने टीचर की बात। और हम जितना मर्जी अप्रिशिएट करते हैं, अगर टीचर ने अप्रिशिएट किया ना क्लास में, वो आके खुश है आज मैं पापा आज मैं ये बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर उसको मैं देखो काम दिया है भी उस दूसरी क्लास से मैडम आया वहां से ये चीज उनसे लेके आया, वो उसको भी ये मान गया भी ये मुझे प्रिविलेज मिला है वो सामान लाने का। सो अगर आप इवैल्यूएट कुर्सी पे बैठ के उसकी एफर्ट्स को, उसकी इनोवेटिवनेस को, उसके कॉन्फिडेंस को रिकॉग्नाइज करते हो, वो बहुत ऊपर तक जाता है। और जिनके बच्चे हैं शायद वो उन्होंने तो ऑब्जर्व किया। अगर आप सुनते हो, मैं तो सुनता हूं, मैं तो बिठाता हूं बेटा क्या हुआ थोड़ा सा बता। और कई बार बुरा हुआ होता है, किसी टीचर ने ऐसे डांट दिया होता है दिमाग के वो भी बता डिप्रेस भी होते हैं यार मेरा कोई है मैंने बोला ही नहीं, बाकी बोल रहा था मेरे तो कुछ ये मुझे ऐसे लगा। सो टीचर के वर्ड वैल्यू के वर्ड मैटर जैसे सुप्रीम कोर्ट का होता है प्रेसिडेंट बन जाता है, जज ने ये बोला, हेडलाइन लगती है इस विषय में जजेस ने ये होता। सो ऐसे मैं मानता हूं टीचर का एक वर्ड क्लास में और खासकर वैल्यू मैटर का। और एक बात मैंने जो मैं वैसे थोड़ी सी आदत ऐसे अटेंड करके फीडबैक मतलब जो चाइल्ड साइंटिस्ट हमारे पंजाब में आप चाइल्ड साइंटिस्ट ऐसे जो गाइडिंग करते हैं वो अपने जो उनको वैल्यूएटर्स ने कमेंट दिए हुए हैं जैसे स्टेट लेवल पे मुझे यही मिला। सो दैट्स व्हाट सेइंग कि इसको ऐसे ऐसे प्रोग्राम है हमें वैल्यूएशन करके जा रहे हैं। आपका एक वर्ड शेयर करिए उसको कितना इम्पैक्ट करके किसी को कहां तक पहुंचाएगा एनकरेजिंग। सो दिस इज किसी का कॉन्फिडेंस ही बना देगा, किसी का कॉन्फिडेंस ही बना देगा, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने वाले मुझे ऐसे ही है कि बोलना नहीं आता बहुत तो समय अप्रिशिएट किया, उसके बाद वो आप करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट evaluator, personal side of evaluators. So this is a technical part. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैसे तो हम फॉर्मा देते हैं मैडम को बोलूंगा भी सारे डिस्ट्रिक्ट को बोलो। और इसमें थोड़ा सा ऐसे रहता है अगर मैं मैडम भी डिस्ट्रिक्ट लेवल ये वाला फॉर्मा आपने ये वाला एवैल्यूएशन है आपने फॉलो कर दी, वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हमें डिस्ट्रिक्ट जो बेस्ट प्रोजेक्ट तो ये फॉर्मा कोई फिल नहीं आ तो वेरी गुड। मैंने I have started working in this program in 2000 as an evaluator. उसके बाद मैं सोर्स पर्सन भी रहा, स्टेट एकेडमिक कमेटी में रहा, स्टेट कोऑर्डिनेटर रहा, तो मैं भी evaluator। अगर मुझे परफॉर्म आ जाएगा मैं भी नहीं होता, पहले पैसे के साथ ऐसे करता रहूंगा, ABC करता रहूंगा। अगर मैं बोला ही नहीं करता तो मैं बकल भी। अगर मैडम बोलेंगे कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैल्यूएशन है वो सारे की फाइल बनाओ, जब आप उनके नाम भेजोगे वो फाइल हम कलेक्ट करेंगे आपसे,
जितने प्रोजेक्ट है ये वैल्यूएटेड फॉर्मा आपसे तीनों के साइन का, तो फिर वो अदरवाइज क्योंकि टीडीएस मैंने वर्क के देखा है बड़ा जोर लगता है जिसे बैठ के वैल्यूएशन करते हैं ना जिन्होंने वैल्यूएशन की होगी उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है। सो बट दिस इज इम्पोर्टेंट, सो ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया एंड कांसेप्ट, रेलेवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू, वो क्वेश्चन से पता चलेगा आप जब क्वेश्चन आंसर करोगे आप, डाटा कलेक्शन कैसे किया और एनालिसिस कैसे किया 15 मार्क्स, एक्सपेरिमेंटेशन जब सर्वे किया तो उसकी वैलिडेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग अटेम्प्ट कितना है जब एक ही लाइन पे चले हुए हैं वो है, टीम वर्क, बैकग्राउंड करेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल। देन दिस इज द स्टेट लेवल, यहाँ पे आ गया इंप्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस ईयर, स्टेट लेवल पे लेवल आ गया। बाकी ओरिजिनलिटी रेलेवेंस थोड़ा सा एक दो जगह पे हमने ये नंबर निकाले वाले हैं, 15 की बजाय 10 कर दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 15 या 10 या 5 कर दिया। और ये भी मोस्ट प्रोबब्ली मैडम कम्युनिकेट कर देंगे सबको ताकि सबको ये पता होगा एडिशन तो वहां पे वैल्यूएट क्या होना है। और जनरली दिस इज 50% फॉर ओरल, 40% रिटन रिपोर्ट, 10% पोस्ट प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन मींस डजंट मीन के बोला कैसे है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। ओरल प्रेजेंटेशन में क्या बच्चा जो प्रोजेक्ट ने बनाया है उसको कम्युनिकेट प्रॉपर्ली कर रहा है, प्लान को, थीम को, कंक्लूजन तो पढ़े हैं उनको बताने में पूरा है भी हां मैसेज अपना क्लियर उसको पता है या नहीं। सो then this is for the national level. So this is we already done, आपने मॉर्निंग में डिस्कस कर लिया कि इवेंट्स को क्या मिलता है, सर्टिफिकेशन ऑफ मेरिट मिलता है, और नो डाउट वो हमेशा बायोडाटा में लिख बच्चे हमारे पास जब बायोडाटा आता है तो बच्चे लिखते और कहीं ना कहीं पे कर ये वाला जिन लोगों को प्रोग्राम के बारे में पता है। अगर मेरे पास बच्चा को पीएचडी करने 4 बच्चे आते हैं, बच्चा कहता है चाइल्ड साइंस चिल्ड्रन साइंस कॉमर्स के पास काम किया तो मैं उसको जिनको इस प्रोग्राम के बारे में पता है अभी 2 बार पार्टिसिपेट तो मैं उसको कम से कम बेसिक पता होगा, मुझे उस पे जोर नहीं लगाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी या कैसे। सो इनडायरेक्टली ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो मैंने पहले बताया नेशनल इंडियन साइंस कांग्रेस है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो काफी सारे बच्चे तो पंजाब के हैं जो मैंने जैसे बताया था रिपोर्ट में जापान गया उसके बाद भी एक नेशनल अवार्ड 2014 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया। और इवन एक पंजाब में एक बच्चे ने प्रोजेक्ट किया है ये टॉल, जब टॉल का ये टैग नहीं फास्ट टैग और फास्ट टैग उसने जलंधर के पास टॉल था वहां पे सर्वे किया भी जो स्लिप लेने में कितना टाइम लगता है, उन्होंने एवरेज वीक मंथ का डाटा लिया और कितनी देर व्हीकल वहां पे स्टार्ट आता है, उसकी वजह से कितना पेट्रोल वहां पे होता है, कितना पोल्यूशन वहां पे हो रहा है। तो अगर फास्टैग होगा ऐसे निकल जाएगी तो सिर्फ स्लो होगा तो कितना फर्क पड़ेगा। तो ये इवन जब नेशनल पे रखा गया तो वहां पे नोट हुई तो अब थोड़ा सा 2-3 साल से कोविड के बाद होगा, वो पहले जब नेशनल होती थी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में से एक आता था, चाहे वो वैलिडिटी पे आए चाहे डेकोरेशन पे आए, और प्राइम मिनिस्टर भी कोशिश होती थी और जिस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को आता तो वहां पे वो प्रोजेक्ट को स्पेशली प्रेसिडेंट ने मतलब वाइस चांस उस टाइम अब्दुल कलाम थे तो उन्होंने मतलब स्पेशल नोट किया, वहां से एप्लीकेशन लेटर प्रेसिडेंट तो डिस्कस करके बच्चों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती। तो अभी एक पुरानी चाइल्ड साइंटिस्ट के लिए वो टीचर लास्ट टाइम लेके गए तो उस टाइम अहमदाबाद में थी, तो जब अहमदाबाद से उस टाइम भी तीसरी बार तो उस टाइम मोदी सीएम थे वहां, तो उन्होंने शाम को सभी स्टेट्स को
हाइट थी और सारी स्टेज अलग अलग थी। अगर कोई आप यहाँ से गया हो तो हर स्टेज के साथ 5 मिनट इंटरेक्ट किया बच्चों के साथ, फोटो खिंचवाई, ग्रुप फोटो खिंचवाई बच्चों के साथ। तो वो इस बार टीचर आई तो वो फोटो हाथ में ले गई, सर आपको याद है पहले वहां पे तब मैं चाइल्ड साइंटिस्ट देखो मोदी के साथ सो ये ऐसी मेमोरीज भी देखो कि नेशनल लेवल का इवेंट है। और पहले तो यशपाल जी रेगुलरली आते थे और पूरा दिन सुबह से शाम बच्चों के साथ रहते थे। और शाम को मीट द साइंटिस्ट प्रोग्राम होता है, कोई अच्छा साइंटिस्ट बुलाते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स के लिए अलग से वर्कशॉप्स। सो these are the additional things which this program contributes। so जैसे ये प्रेसिडेंट हमारे जो गुरमीत सिंह जी हैं, एक जसविंदर, ये जुड़े हुए हैं इनसे पंजाब में, इनको 2 बार प्रेसिडेंट अवार्ड आए जो मिला, ये साइंस टीचर्स हैं। और इवन हमारे तो पहले जब मैंने अपना करियर पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर से स्टार्ट किया था, शशि जी बैठे थे हम लोग और शशि जी ने काफी देर मैं पंजाब गवर्नमेंट में था, तो उस टाइम मैं इवैल्यूएट में गया तो मैंने देखा बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट टीचिंग एड बनाई हुई, वो शायद आजकल वो कई जगह लाते हैं अपने एग्जीबिशन। उसने बड़ी अच्छी स्केल से ज्योमेट्रिकल थ्योरीज को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए ज्योमेट्री टीचिंग एड, तो मैंने देखा भी पेटेंट हो सकता है। तो हमने उनके 3 पेटेंट फाइल कराए, 3 पेटेंट है। देखो एक मिडिल स्कूल टीचर है वो मैथमेटिक्स के। तो ऐसे में कई बार अगर आप मैडम को कहूंगा अगर प्रोजेक्ट में मतलब आप पेटेंट सेंटर का भी कोई बता दो भी कौन से प्रोजेक्ट है, जस्ट इवैल्यूएट, बिकॉज़ काउंसिल के पास फंड्स हैं प्रमोट करने के लिए, स्टोर करने के लिए। सो यू कैन क्लेम कि हमारी जो चिल्ड्रन साइंस काउंसिल के प्रोजेक्ट है उसमें से 2 हो जाएगा, पेटेंट भी मिलेगा। और हमारे 4-5 पेटेंट इसमें से निकले पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के चिल्ड्रन साइंस काउंसिल के प्रोजेक्ट। तो दिस इज द एडिशनल थिंग, मतलब जो एक स्टेट के लिए प्राउड और स्कूल एजुकेशन के लिए प्राउड का बात है, बच्चों के लिए की बात है, बच्चों के लिए। सो दिस इज द सो थैंक यू वेरी मच। सो अगर कोई और डिस्कशन है, क्वेश्चंस है, थैंक यू फॉर पेशेंस लर्निंग। लंच के बाद सुनना मुझे पता बहुत मुश्किल है, बोलना तो बिल्कुल सर बैकग्राउंड सेक्शन में क्या रहता है? प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, मैं वही बता रहा हूँ। बच्चा ऐसे मोड में था, प्रोजेक्ट और अच्छा हो सकता, लेकिन उसके पास ऐसी फैसिलिटी थी वहां से आना जाना भी मुश्किल था, तो हम उसको दे सकते हैं। या उसमें उसका स्कूल ही ऐसा था जो स्कूल की लोकेशन थी, वो प्रोजेक्ट भी अच्छा था, लेकिन जैसे बाकी जगह पे उसको फैसिलिटी मिल जाती है, तो उसको वैसी कोई लैब की या स्कूल की फैसिलिटी नहीं मिली, या उसको लिखने में जैसे वो कह रहे हैं मैं आया हूं, वहां पे सब टीचर मेरे गाइड टीचर इतना टाइम। सो दिस इज द बैकग्राउंड। जहाँ पे प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन ड्यू टू ज्योग्राफिकल लोकेशन या कोई बच्चा को ऐसे बैकवर्ड क्लास से या बैकवर्ड कम्युनिटी ऐसी है, उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, फिर भी उसने ये वाला कर। और इस प्रोजेक्ट में दम बहुत है, आइडिया बहुत इनोवेटिव है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा एक्सपोजर और मिला होता तो वो कर ले। मतलब जिस प्रोजेक्ट में आप दम देखते हो, लेकिन वो मतलब अर्बन या जहाँ पे फैसिलिटी सभी मिल रही है वहाँ का ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटीज वो प्रोजेक्ट को उस लेवल तक कर नहीं पाए। और फिर आप बोलोगे ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगेन वेरी सब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी एक ही आती है भी आप उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हो कहाँ पे, बाकी वो जो बोल रहा है क्या बोल रहा है कितना सच है वो आपके कैलिबर पे एवेल्युएटर पे की स्किल पे डिपेंड करता है, उसको कैसे जज करता है या किसी को फेवर करना चाहता है या डिसफेवर करना चाहता है अगेंस्ट एक्टिविटीज के। सर एक प्रोजेक्ट को करने के लिए मिनिमम टाइमिंग्स क्या होना चाहिए, मिनिमम डेज कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितना? ऐसा कोई नहीं है,
पर जनरली ऐसे प्रोजेक्ट करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। और सर जब क्वेश्चनेयर बनाते हैं तो कितने क्वेश्चन होने चाहिए? वही मैं कह रहा था, उसमें भी कोई उसमें जैसे हमारे पास भी करते हैं बच्चे जो सोशल साइंस हमारे पास पढ़ाने आते हैं, भी आपको साइंस टीचर्स को ऐसे कहते हैं, तो वो 100 होते हैं 10 लेके आते हैं। वो पहले तो आप देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो सेकंड उसको स्क्रीनिंग करनी है आपने, फिर आप उसमें से क्वेश्चन काटना है, इसमें मैं काट आपका होना चाहिए जो अनवांटेड डाटा फॉर द सेक ऑफ डाटा, उसको मैंने क्रॉस लगा, मतलब वही एसेंशियल आपने रहने देना, फालतू का आपने रखना, ये होना चाहिए। और सेकंडली अगर आप फिर भी क्वेश्चन बहुत बढ़ रहे हैं, देन फिर आपको जो अपना स्टडी का एरिया उसको नैरो करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली 20 क्वेश्चंस के बाद ही आपको आंसर मिल जाएगा। जनरली होते हैं इस लेवल पे 10 to 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर कितने लोगों को करना चाहिए सर मिनिमम? फिर मिनिमम ऐसे स्टैंडर्ड नहीं है, गाइडलाइंस भी इतना सर्वे हम करेंगे जैसे अवेलेबिलिटी पे है। जब जैसे मैं डिजीज का बात अब डिजीज उस एरिया में 50 लोग हैं उस लोकेलिटी में, ठीक है, आप 50 से ज्यादा जा ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन दूसरी जगह पे कोई ऐसा पानी का वेस्टेज देख रहे हो भी कितने घरों में, वो आपका 100 का नेट कम लगेगा, आप 200 कर लेते हैं, ठीक है ना। अगेन वेरी सब्जेक्टिव थिंग, you are the guide teacher and आजकल बुजुर्ग बाबा की गाइडलाइंस आ रही है, बी ओ डब्ल्यू इस तरह का प्रोजेक्ट है टू वेरी बी क्योंकि हर एक मैं सारी एक्सपर्ट नहीं है भी जेडी इस तरह ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ तो सब ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਂਪਲ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਂਪਲ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, टाइप ऑफ सर। कुछ एक बच्चे प्रोजेक्ट में फोटो एल्बम ले आते हैं कि ये जो काम किया पब्लिसिटी के लिए, क्या फोटो एल्बम नेसेसरी होनी चाहिए? नेसेसरी नहीं है, जस्ट ऐड ऑन ऑथेंटिसिटी आपका बता दिया, भी आपने काम, जैसे मैंने बोला भी एल्बम लगाने की जरूरत लास्ट उस पे लगा दो, अगर कहीं स्पेसेस बची हुई है उस पे लगा दो, इवन अपने प्रोजेक्टर में एक पेज लगा दो। स्पेशली अगर आपने इक्विपमेंट बनाया है, कोई डिजाइन किया है, उसकी तो फोटोग्राफ लगाई, एक्सपेरिमेंट करते पूरा पता चलता है बच्चे किया है कर रहे हैं, कोई सर्वे करने जा रहे हो किसी लोकेलिटी में, वहां की फोटोग्राफ ले, ऐसे तो कुछ बच्चे हैं वो रिकॉर्डिंग भी करके रखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो 10 मिनट अपनी रिकॉर्डिंग करके वो भी सुनाते हैं भी हम गए रिकॉर्डिंग की है, बट अगर आप बोलोगे उसके भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं। एक बच्चे ने पीछे डिजीज चली थी डेंगू वगैरह, तो उन्होंने कहा कि बकरी का दूध अपने से ब्लड प्लेटलेट बढ़ते हैं, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि इस तरह से, तो वो उसमें क्या हो जाता है कि बकरी का दूध महंगा नहीं होता है उसमें पहले आप देखो आप स्टडी करोगे बी प्लेटलेट्स एंड what are the different factors basically facilitate the increase of platelets, क्या होना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा भी जो प्लेटलेट्स किसकी वजह से कम होते हैं, किसकी वजह से बढ़ते हैं, और कौन से डाइटरी मतलब डाइट कंपोनेंट मींस नॉट सेइंग रोटी या सब्जी मींस पर्टिकुलर कंपोनेंट लाइक इफ यू आर टेकिंग ग्लूटेन या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, तो then you can match बकरी दूध का experimentation like fat, protein, different things can be checked, and nowadays even tests are available, तो उसमें से आप विटामिन चेक करवा लो, तो उसमें से कितने विटामिन है, this type of tests are there, then you can correlate, but इसमें क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, एक प्रिकॉशन है, क्योंकि हम बच्चों को इन्वॉल्व करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारी लिमिटेशन है, ज्यादा वैलिडेशन तक नहीं जा सकते, तो इसमें
ह्यूमंस को टेस्ट करना कि हमने ये वाली चीज बनाई है, इसमें ये होता है, अब टेस्ट करो, इससे ये बीमारी हो जाएगी, कि खिलाना मत। अगेन दिस इज अनएथिकल। वो ये तो आजकल पहले नहीं था, पीएचडी में भी जब ऐसे कोई काम करता है, रिसर्च करता है, तो उसमें भी एक एथिकल कमिटीज बनी हुई है, उनसे अप्रूवल लेनी। अगर आप ना ऐसे भी करो भी इस एज के बंदे इस एरिया में कितनी देर बिना सांस लिए भाग सकते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स साइंस वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे पीएचडी करते हैं, या कितने लोगों को, उसके लिए भी कमेटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। सो एनिमल क्रूएलिटी भी होनी चाहिए। डायरेक्टली जो भी चीज आप बनाते हो कंजम्पशन यू हैव टू प्ले विद द डाटा ओनली, डोंट ट्राई योर प्रोडक्ट्स ऑन ह्यूमंस और एनिमल्स। तो इसके तो उस लेवल पर हम एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, ना ही उस लेवल टेस्टिंग कर सकते हैं। हो सकता है ट्रेडिशनली हो, आप डॉक्यूमेंट कर दो, लेकिन ट्रेडिशनली जैसे कोई कह रहा है इसको बनाओ खाओ ये बीमारी हो जाएगी, खाना बनाना शुरू कर दो, वो नहीं होती इस लेवल पे। इस एक्सपेरिमेंट में हमने स्पेशली इसमें एक्टिविटी बुक में प्रिकॉशंस ली हुई है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स रियल वर्ल्ड में हमें नहीं करने, क्योंकि वी कैन नॉट मल्टीप्लाई द थिंग्स। सर ये जो आपने बताया ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ग्रुप लीडर और उसका जो सहायक है, वो दोनों किसमें सर? डिस्ट्रिक्ट में सर मैं वही कह रहा हूँ, वैसे तो हमारा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, भी दोनों आएगा। अगर जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम दोनों को बुलाते हैं, स्टेट पे भी हम यहाँ पे, ठीक है, और डिपेंड करता है सर फंड्स। जैसे इसमें क्या है क्योंकि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, जिनके पास फंड्स अच्छे हैं, टीएडी देना है, बच्चे का रहने का करना है, खाने का करना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो बुला लेंगे स्टेट, अदरवाइज ग्रुप लीडर, मतलब एटलीस्ट एक ग्रुप लीडर, क्योंकि नेशनल लेवल पे हमें ग्रुप लीडर को लेके जाएंगे। बच्चों का जो आईक्यू तो बहुत छोटा होता है। मैंने खुद तैयार किया, दो बच्चे से छोटे 8वीं क्लास में, दोनों ने बहुत मेहनत करी। जब बारी आई बाहर ही एक बच्चा आगे जाएगा, तो जब एक बच्चा आगे आगे पेट भर गया, तो अगले सालों बच्चे बाहर भाग गए, मुझे उनके आगे क्यों नहीं ले गया, क्योंकि हमें हमारे टाइटल के लिए चला जाएगा, और इवन ये बहुत बड़ी समस्या हमें। सर इसमें मैं कह रहा हूँ, इसमें मेरी एक इसमें ऑब्जर्वेशन है और एक रिपोर्ट भी है, ऐसी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। उसमें बच्चे को मेंटली प्रिपेयर कैसे करना है, जब आप क्लास में मॉनिटर बनाते हैं, एक को बनाते हैं या एक डिग्री के लिए बनाते हैं, तो बाकी लोग उसको बीएस कर जाते हैं, ठीक है। जब आपने एक दो हफ्ते कम कर लिया, उसके साथ काम करवा लिया बच्चे के साथ, उसी टाइम सेलेक्ट कर दो दिस इज द टीम लीडर, यू आर द कोवर, तो वो अपना मेंटली अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा। ग्रुप लीडर है, वो मेरा लीडर है, वो ही आगे जाएगा, मेरा काम यहाँ तक मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है, इतने काम करते हैं सर, वो सिस्टम तो है ही है। मैं वही कह रहा हूँ सर, तो 4 बच्चों को बनाया पीएम सर एक है ना, हम तो सारे मिनिस्टर करते हैं सर। इसके एक सॉल्यूशन मैडम दीपशिखा कर सकते हैं, मैडम दीपशिखा इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जिस दिन आपने ग्रुप लीडर को पैसे की छोड़ो, जिस दिन आपने लीडर को सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिया, क्यों ना उस बच्चे को 2 मोमेंटो सर्टिफिकेट दे दिया जाए। अब वो कर देंगे, वो दूसरा तो देखो दिस इज द स्ट्रांगली रिकमेंडेड, जो दोनों बच्चों को सर्टिफिकेट एटलीस्ट, जो बच्चे देखो जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है वो सभी बच्चों को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले, स्टेट लेवल सारे टेस्ट के लीडर्स को लेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें 16 टीम या 32 सिर्फ बताते हैं, जो 16 टीम आगे भेजेंगे, 32 से वो ज्यादा लगेगा, जो मोमेंटो अगर बड़े एक जो उसको 200 को दे दो, 100 का दे दो, वो अच्छा रहेगा, वो एनकरेजमेंट मिलेगी, दिस कैन बी डन। लेकिन मेरे बच्चे को आप मेंटली प्रिपेयर पहले करिए, ये ग्रुप लीडर है, हो ही जाए काम, चाहे उसने किया है पर लीडर तो लीडर ही है। सर एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जैसे गवर्नमेंट के लिए जो मार्क्स परसेंटेज हो गया या हमको कमेंट्स देते हैं कि आप ये भी इम्प्रूव करिए,
और तो एक जिस टाइम जजमेंट मोस्टली हम जजमेंट करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं, उस टाइम तो आप जनरल रिकमेंडेशन देते हैं, बेटा ये ऐसे इम्प्रूव कर लेना, ये यहाँ पे लेना, एक जनरल था। उस टाइम बच्चा प्रेजेंट कर रहा होता है, सही से सुन भी नहीं पाता, या सही बात करता है, उसका माइंड से चले जाए। लेकिन क्या उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन बच्चों की ओरिएंटेशन कर सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन विजिबल नहीं है सर, विजिबल और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, बच्चे का होगा वो भाग जाते हैं, उसके बाद बड़ी विजिबिलिटी नहीं है। इवन हम वी हैव ट्राइड स्टेट लेवल वहां पे चल कर पाते हैं, वहां पे कर ले, बट नॉट सक्सीड। इवन आप बताइए जो 16 प्रोजेक्ट्स है ना, हम पंजाब में रेगुलरली कर रहे हैं ओरिएंटेशन नेशनल लेवल के जाती है, तो 16 में से बच्चे मुश्किल से 10 या 12 टीचर फिर भी नहीं आते, वो उसके लिए स्पेशली उनको बुलाते हैं, ये भी देना है भी उस दिन एक दिन आएंगे अपने गाइड के साथ। तो उसमें सर और ऐड कर रहा हूं, टच ही नहीं हो रहा कि बच्चा तो फिर भी जा रहा है, गाइड टीचर को फिर भी 4 मिल रहा है। गाइड टीचर सारे मेन गाइड की मैं भी बोला वैसे 50% गाइड की मेहनत है, ठीक है, लेकिन गाइड टीचर फिर अगर 16 में मेरे को पूरी आ रहा है तो बाकी 12 फिर नहीं जा रहे, उन्होंने भी बराबर में नहीं है, तो वहां ऐसे ऐसे सिस्टम के साथ थोड़ा सा और एक बात जैसे यदि हम कोई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो स्कूल में हमारे पास डेली चाहिए उसके लिए टेस्ट किया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, ये क्वेश्चन वो पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है वो वहाँ पे ऑफिसर है, वो बिहेव कर देता है कि ये पॉलिसी ऊपर तक है। आजकल सभी डिपार्टमेंट में प्रेशर इतना है, सभी डिपार्टमेंट में इतना है, वो नहीं कर पाएंगे पॉलिसी के ऊपर से। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्डर कर देगा, जो डिपार्टमेंट को लैब आएगी उनका सेक्रेटरी नहीं मानेगा, वो बात ये तो यहाँ तक प्रॉब्लम थी। पहले हम पंजाब में सेक्रेटरी एजुकेशन में 1 साल निकाल दिया, कोई स्कूल टीचर ये बकवास है, टाइम वेस्ट करता है, कोई स्कूल टीचर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसको सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, क्योंकि ये प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एग्जीक्यूटिव एजुकेशन करता है, उन दोनों सेक्रेटरी की आपस में नहीं थी। देन वी हैव अप्रोच द चीफ सेक्रेटरी, तो वो उन्होंने रिटर्न में निकाल कोई और नहीं करता, देन वी हैव टू रेक्टिफाई दैट। तो ये तो कहां करेंगे तो जनरली कि नहीं पॉसिबल नहीं, बड़े लेवल का होता है, फिर बनाएंगे ना इतने बड़े करवाया बोर्ड में जो इतने वे कॉम्पनसेट करेगा, डीएसटी कॉम्पनसेट करेगा, डीएसटी का बिल आएगा, मतलब फिजिबिलिटी। तो मैम से क्वेश्चन है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स के ओरिएंटेशन कर सकते हैं सेम एस, क्योंकि पता क्या है हम रेगुलरली मंगवा लेते हैं प्रोजेक्ट, और जहाँ जाते हैं आप बिगिनिंग में बोलते हैं कि लॉग का नहीं पता है, कहीं को समरी का नहीं पता है, टीचर्स को जो गाइड को ही नहीं पता है। मैडम से गुस्सा ना मान जाएंगे, आपको बुलाया था, इस प्रोग्राम में मैंडेटरी है भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ओरिएंटेशन होनी चाहिए, जो बंदे यहाँ से सीख जाएंगे दे विल एक्ट एज ट्रेनर्स ओवर देयर। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना जरूरी है, इस प्रोग्राम में मैंडेटरी कर दिया सर डिसाइड मैडम ने एक सीएससी के रिगार्डिंग एक वर्कशॉप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पिछले कल होती है क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट पे एक मीटिंग तो होती है सीएससी की, तो उसमें अगर वो 4-5 घंटे की 3 घंटे होती है, तो 1 घंटे का सेशन जो है साइंटिफिक प्रोजेक्ट पे रख ले
और जो यहाँ से टीचर्स गए हैं सभी जो है उस पर करने की मतलब स्पेशल टाइम के लिए स्पेशली और ये मैं पीपीटी आपको दूंगा कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूज करनी है, इसको एडिट करके अपनी स्लाइड्स दिखानी है, देन यू कैन ये जो ऑनलाइन हमारे साथ टीचर जुड़े हैं, अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर लें और आपका क्वेश्चन यहाँ से सर से सॉल्व करवा देंगे। कोई भी अगर ऑनलाइन जुड़े हो टीचर्स। डिस्ट्रिक्ट ने एक कोशिश की है अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है CSC करके, और उसमें डॉक्टर एस्ट्रोलॉजी का एक डिटेल रिपोर्ट जो है किस तरह से रिपोर्ट बनाया गया है और लगभग जो विषयों को आपको आज हुआ है उस विषय पे हर एक चीज पे बड़ा माइन्यूटली सर ने डिटेल्स दे रखी हैं। आप चाहें तो उसको शेयर कर सकते हैं आप अपने बच्चों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक अच्छी जानकारी जा सके। और आज का भी जो ये कार्यक्रम रहा है, सर की पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो हिमकोर्स की तरफ से आप सबको YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो भी आज का कार्यक्रम है इसकी रिकॉर्डिंग भी आप हर एक टीचर तक पहुंचा सकते हैं, उसका लाभ सभी तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि अश्विनी सर काफी ऐसा नहीं है कि आप में से भी बहुत सारे टीचर जुड़े हैं बहुत सालों से, अश्विनी सर भी काफी सालों से जुड़े हैं और शायद एक्सपीरियंस भी टीचिंग का काफी है उनका। तब Thank you so much for giving me this opportunity to share the platform with you in this state level teachers workshop. आपकी तरफ से काफी एफर्ट्स रहे हैं। बिफोर कोविड इट वाज स्मूथ, अच्छा सेलिंग हो रही थी, अच्छा जा रहा था। बट ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस को कंटिन्यू रखा। स्टेट के अंदर भी हमने ये प्रोग्राम्स किए और मैम आप डे नाइट काफ़ी अच्छा मेहनत करते हैं। आपका जो भी टीम है यहाँ पे स्टेट की तरफ से सब अपना एफर्ट्स करते हैं। और सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे टीचर्स भी हैं वो भी सारे कीन इंटरेस्ट ले रहे थे, ऑनलाइन जुड़ रहे थे, उनके साथ भी हमने कम्युनिकेट किया। जो आपकी गाइडलाइंस आई है 2018 के बाद इसमें चेंजेस आई है। 2018 से पहले इसमें डिफरेंस अलग तरीके से चलता था, तो 2018 के बाद आपकी ये न्यू गाइडलाइंस आई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एनजीओ के द्वारा पहले चलाया गया। आपका जो ये मध्य प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पे भारत ज्ञान विज्ञान का जो जत्था होता था, एनजीओ इसमें काफी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। आज की डेट में हमारे पास NCSC जो भी हमारा डिफरेंट विंग्स है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद हिमकॉस्टे ये इस प्रोग्राम को रन कर रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो जितने भी हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के, वो तो पेन ले ही रहे हैं। सिर्फ थोड़ी सी बात यह है कि अगर हम ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें, ग्रास रूट लेवल पे अगर हम देखें, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चों में या टीचर्स में टैलेंट नहीं है या वो करना नहीं चाहते हैं। सिर्फ दिक्कत थी अभी तक थोड़ा सा जो रियलिटी था, जो इसका एक स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर उन तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाया है कि आपने रिपोर्ट किस तरह से बनानी है, जो भी आप आज हम ये बात कर रहे थे, और उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है। और आपने जो प्रॉब्लम लेनी है वो प्रॉब्लम आपने जो आपका नेबरहुड है, जहाँ पे आप रहते हो, आपका लोकेलिटी है, वो आपने फाइंड आउट करना है कि आपका क्या प्रॉब्लम है और आप उसको किस तरह से सोल्यूशन दे सकते हो। और आप विद इन एक टाइम लिमिट फ्रेमवर्क के अंदर जो आपको प्लान करना होता है, क्योंकि आपके पास स्कूल की बाकी और एक्टिविटीज भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है और साइंटिफिक हमारा जो पॉपुलराइजेशन करना है ये भी करना है। तो आज हमें खुशी भी होती है कि स्टेट के अंदर हमारे पास फार फ्लंग एरियाज है, वहाँ के बच्चे कन्वेंट स्कूल्स से अगर कंपैरिजन करें तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैं ये जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम इवैल्यूएशन पे भी आते हैं, इवैल्यूएशन भी हमने देखी है सर,
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखी है, इवन स्टेट लेवल पे भी हमने देखा है इसको। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से, एक तो जो हमारा टाइटल रहता है, जो बात आज आप भी कर रहे थे कि जो हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल है उसको हम सही तरीके से चुने, क्योंकि जो आपका वर्क है वो आपके टाइटल के द्वारा ही रिफ्लेक्ट हो जाता है और वहीं से आपका आ जाता है। दूसरा, जो भी ये बात सर ने भी आज कही, बड़ा इन्फोसिस इसके ऊपर दिया, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, पर 3-4 चीजें जो बड़ा जो सर ने कही कि जो आपका टाइटल है, जो आपका रिपोर्ट है, जो उसका फॉर्मेट है, उसके अंदर जो कंटेंट्स आने चाहिए, और साथ में जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है, हमारा जो समरी रिपोर्ट रहता है, और ये चार्ट्स की जो प्रेजेंटेशन है, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपने आफ्टर ऑल आपने प्रेजेंट थ्रू वो चार्ट्स ही आपको वो करना होता है। और साथ ही साथ में जो आपके पास लॉग बुक है, हमारे बच्चे आज तक मैं जो देखता था, जो कमी मैंने देखी है ड्यूरिंग इवैल्यूएशन, वो ये था कि सर बच्चों ने काम किया हुआ है और उनके पास वो लॉग बुक है नहीं है, वो अपना डॉक्यूमेंट कर ही नहीं पाए हैं। या कई बार क्या होता है कि वो काम करते तो है, फिर ज्यादा फील्ड में नहीं जाके या ज्यादा एक्सपेरिमेंट में टाइम नहीं डिवोट करते हैं, वो हरिडली उसको बनाने की कोशिश होते हैं, हड़बड़ाहट में रहते हैं कि और इस तरह से उसको कंप्लीट करने के उसमें होते हैं। तो इसमें यह कि कम से कम हम 2 से 3 महीने, वी मस्ट एटलीस्ट पुट इन 3 months टाइम। आज मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा मैम आपके एफर्ट को, हिमकॉस्टी की जो एफर्ट कर रहे हैं हमारे स्टेट की तरफ से, कि जो इस तरह की वर्कशॉप्स है, आज हमारी ये वर्कशॉप यहाँ स्टेट लेवल पे हुई है। जितने भी यहाँ पे हमारे रिस्पेक्टिव टीचर्स है, गुरुज है, गाइड्स है, असल तो आप लोग ही है जिन्होंने देश का भविष्य बनाना है। आज जो भी प्रोग्राम्स हमारे जा रहे हैं, 65% ऑफ द पॉपुलेशन, वी आर हैविंग द रिचेस्ट यंगेस्ट हमारे पास पॉपुलेशन है, रिचेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो हमारा 35 ईयर्स के नीचे नीचे वो हमारे पास पॉपुलेशन है। और अगर हम इसको ग्रास रूट लेवल से ही उस पॉपुलेशन को टैग करें, आज जितने भी प्रोग्राम्स बन रहे हैं वो ये हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसी को देखते हुए हम इसको टारगेट कर रहे हैं। और साइंस पॉपुलराइजेशन तो ऐसा नहीं है कि ये तो हम बात करते हैं कि साइंस तभी आएगी अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि आज की डेट में जितने भी भारतीय हैं हम लोग, हम बाय बर्थ वी आर बोर्न साइंटिस्ट, क्योंकि हमारी परंपराएं वैसी है, हमारी जो दिनचर्या है वही ऐसे, जो हमारा रीति रिवाज है, महीने हैं, जो उसमें डिफरेंट फेस्टिवल्स आते हैं, तो दे आर द 2 sides ऑफ द सेम कॉइन। चाहे आप उसको किसी भी एस्पेक्ट में देख लो, अपना रिलीजियस से देख लो, अपना कल्चर से देख लो, ट्रेडिशन से देख लो। इसी वजह से अगर मैं देखता हूँ कि जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, इसमें कहीं ना कहीं जो आपका ट्रेडिशन है, कल्चर है, ये वाला सब थीम तो हमेशा रहता ही रहता है। आपका जो सोशल एस्पेक्ट है और आपका जो ITK है, इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज, आज ये विलुप्त हो रहा है, खत्म होने के कगार पे है। कई हमारे गांव में इस तरह का ट्रेडिशन है, कल्चर है, साइंटिफिक वहाँ पे चीजें हैं, उसको फोरफ्रंट लाने का हमारा ही काम है। अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी अगर बात करें, उसमें भी आज फोकस हम अपनी रीजनल एस्पेक्ट्स पे, रीजनल लैंग्वेज पे हम ज्यादा दे रहे हैं। तो यही मैं कहूँगा कि कहने को तो बहुत कुछ है, तो पंकज सर ने तो ऑलरेडी कहा कि जो भी आज हमने यहाँ पे सर की प्रेजेंटेशन रही है या इससे पहले भी एफर्ट्स रहे हमारे स्टेट की तरफ से प्रेजेंटेशंस है, वो हर एक स्टूडेंट तक अगर डिसेमिनेट हो पाएगा तो समझ फिर ये लगेगा कि जो आज की हमारी इस तरह की वर्कशॉप है ये सार्थक होंगे। सर जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप ही भविष्य बना सकते हो इन बच्चों का, और यू आर रियली द पीपल हु कैन बिल्ड द ग्रेट फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और जितने भी आप यहाँ पे पहुंचे हो, अगर आप अपने इस मैसेज को कम से कम 3, 4, 5 टीचर्स तक ये मैसेज जाता है, तो ये आगे मैसेज बच्चों में मल्टीप्लाई करेगा, 10 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट्स। और आप अपने जिलों में जाके, इसके बाद आप में से कई डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुपरवाइजर्स बैठे हुए हैं, आप जाइए अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने जो भी आपका सेटअप है वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर सर के थ्रू आप ऑनलाइन वर्कशॉप तो कंडक्ट करवा ही सकते हो, डिसेमिनेट करवा ही सकते हो। और जितना समय रहते ये मैसेज जाएगा उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब जून खत्म होने वाला है, जुलाई आ गया सर। जुलाई में कुछ अगर अभी भी टॉपिक नहीं चूज किया होगा तो फिर वही है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर तो आपका फिर इवैल्यूएशन का, क्योंकि सब डिवीजन वाले कंपटीशन शुरू हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाले शुरू हो जाएंगे, फिर सर आगे ऐसे स्टेट लेवल पे,
और सर के लिए तो सर ने देखो आज पटियाला से यहाँ पे हमारे बीच में पहुंचे हैं, वेदर भी तो तब सुबह मॉर्निंग में थोड़ा ड्रास्टिक था। सर हैट्स ऑफ टू यू, सल्यूट टू यू, बहुत अप्रिशिएशन सर, बहुत वंडरफुली आपने एक्सप्लेन किया। मैंने सर पहले भी सुना है, मैं पहले भी इंटरेक्ट किया हूँ, मैं पहले भी ऑब्जर्व किया है, पर जिस आसान लैंग्वेज में आज आपने अपनी बात को, ये चिल्ड्रन साइंस जो ये कांग्रेस, इसकी जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरह से बनती है, इन पहलुओं पे जो आपने बात की, रियली सर काफी अप्रिशिएबल है सर, थैंक्स टू यू। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। कोई और बोलना चाहिए? तो अंत में आज की वर्कशॉप में सभी विभिन्न जिलों से आए हुए सभी टीचर्स, और उम्मीद करते हैं कि अब हमारे पास, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से हम 2 या 3 टीचर्स और एक इवेलुएटर तो सबसे आए ही हैं, तो इतने लोग तो हम सोच सकते हैं कि अब मास्टर्स हो गए हैं, रिसोर्स पर्सन्स बन चुके हैं। तो क्योंकि इसमें इतना बताने के लिए जो मेन पॉइंट्स है वही बताने हैं। हम लोगों ने भी मतलब अगर आगे हम करेंगे तो हम प्रोजेक्ट के बारे में तो नहीं बताएंगे कि ये वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें और उसको आप करें, आप जस्ट हमने इसके बारे में आउटलाइन बतानी है, ब्रीफिंग करनी है उसकी। तो जहाँ तक मैंने भी सुना है सुबह से, तो इतना अब तो समझ आ ही गया है कि करना क्या है बच्चों ने और टीचर्स ने कैसे कैसे करवाना है। तो जब भी आपकी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की होंगी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, उसमें आप बढ़ चढ़कर भाग लें और टीचर्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करें, उनके कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं भी होते हैं तो हम गुरमीत सर, इनसे सर, सूद सर से बोलेंगे कि हम इनको तंग कर लिया करेंगे बीच में। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से सर डॉक्टर BS सूद का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ पर समर वेकेशन शुरू हो गई थी तो स्कूल्स में छुट्टियाँ भी थी, तब भी टीचर्स यहाँ पर पहुँचे, और उसके लिए आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी हिमकॉस्टे की टीम जिन्होंने मेरे साथ यहाँ पे काम किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।